Reaching the age of adolescence. Secondary sexual characters. Secondary sexual characters are the characters which helps in identifying a human being, whether it is a male or a female. In boys, what are the secondary sexual characters? Let us study. They grow mustaches and beards, यानी कि उनकी दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं. So these are secondary sexual characters. They develop pubic hairs on their underarms and on their chest. शरीर के कुछ हिस्सों पे उनके इस एज में बाल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे चेस्ट पे ज़्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. अंडर आर्म्स में बाल आना शुरू हो जाते हैं. बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. इस एज में उनकी बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, एंड मेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ स्पर्म. Now let us talk about secondary sexual characters in girls. They develop pubic hairs on their underarms, as it is shown in the picture also. Underarms बाजू के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है. This area, so boys and girls both have hairs at not before adolescence, but during the adolescence age, hair starts growing here. So development of breast with milk secreting mammary glands begin to produce gametes called as ova or egg. So these are the changes in girls that take place at this stage. Reproductive phase in humans, कि human beings किस एज तक reproduce कर सकते हैं. They attain reproductive capacity as soon as they can produce gametes. Human body में जैसे ही जिस एज में gametes produce होना शुरू हो जाते हैं, उसी एज से वो reproduction के capable हो जाते हैं. The capacity for maturation and production of gametes is longer in male than in female. Females के comparison male में gametes produce करने की जो ड्यूरेशन है, जो साल है, वो फीमेल से ज़्यादा है. इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट 10 to 12 years and last up to 40 to 45 years. तो फीमेल्स में 10 से 12 साल की एज में गैमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, और उसके बाद गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद बंद कब होते हैं? एट द एज ऑफ 40 to 45 years. Menstrual cycle in females. It is a reproductive cycle in females. It begins at puberty, and the onset of the menstrual cycle is called as menarche. The process includes cyclic changes in the ovary and in the uterus, both simultaneously. In the ovaries, an ovum develops and matures and then is released. In the uterus, a thick spongy inner lining develops, anticipating pregnancy. If the egg is fertilized, pregnancy occurs. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. The menstrual cycle stops in the woman anywhere between 45 to 52 years. Stopping of menstrual cycle is called menopause. The years between menarche and menopause marks the reproductive age of woman where she is capable to bear a child. Sex determination. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nucleus
of their cells. 2 chromosomes out of these are of the 6 chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. The gametes have only one set of chromosomes. The unfertilized ovum always has 1 X chromosome, but in the male gametes or sperms, there exists one kind having the X chromosome and the other kind having the Y chromosome. When a sperm contributing X chromosome fuses with the egg, it develops into a female child. When a sperm contributing Y chromosome fuses with an egg, it develops into a male child. Let us try to understand this with the help of this picture. Now, male and female both produces gametes. Female produces gametes which have X chromosome. To understand this, you need to understand that a human body has 46 chromosomes in each and every cell. सिर से लेके पांव तक हर सेल में के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और यह फिक्स्ड है. ह्यूमन बॉडी का हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है. ह्यूमन बींग्स में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. उसमें से 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के सेम होते हैं, लेकिन 45 और 46 जो मिलकर पेयर बना रहे होते हैं वो उस पेयर को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वही पेयर एक्चुअली डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन बॉडी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी. ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं. इसीलिए हम या तो ऐसे बोलते हैं कि एवरी सेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम कहते हैं 23 पेयर्स. तो फीमेल में जो 23rd पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं. इसीलिए हमने उसके लिए सेम अल्फाबेट भी यूज किया है, XX. मेल में जो 23rd पेयर है वो दोनों क्रोमोसोम सेम साइज सेम शेप के नहीं हैं, इसीलिए अल्फाबेट भी अलग अलग यूज किया गया, X एंड Y. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक स्पेशल तरह के सेल्स बनते हैं. एज आई टोल्ड यू कि हमारे शरीर के पूरे सेल्स में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स 46 या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ही होते हैं. लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ खास ऐसे सेल्स बनते हैं जिसमें 23 पेयर्स नहीं होते, या हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, 23 होते हैं, यानी कि आधे रह जाते हैं, और उनको कहा जाता है गैमेट्स. तो फीमेल में ये खास तरह के जो सेल होते हैं इनको एग्स कहा जाता है, और ये ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ये जो खास तरह के सेल्स होते हैं इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है और इनको कहा जाता है गैमेट्स. तो गैमेट्स फीमेल बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं, मेल बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं. तो जो फीमेल बॉडी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको खास नाम दे दिया गया है एग, और जो मेल बॉडी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको नाम दे दिया गया है स्पर्म. अब क्योंकि फीमेल बॉडी के पास सिर्फ XX है तो उसके एग X ही तरह के बनते हैं, यानी कि ये दोनों XX अलग अलग हो जाते हैं और आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे, बट दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दोनों के पास XX ही है. लेकिन मेल बॉडी में क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम है सेम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो आधे गैमेट्स Y क्रोमोसोम वाले बनते हैं और आधे X क्रोमोसोम वाले बनते हैं. नाउ लेट अस एज्यूम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फ्यूजन की, क्योंकि एग और स्पर्म
जब फ्यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. और क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगी 23 क्रोमोसोम्स वी विल गेट फ्रॉम आवर मदर एंड 23 विल गेट फ्रॉम आवर फादर. तो हम इस तरह से हमें उनके जेनेटिक मटेरियल मिलता है. तो द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मीन्स 23 क्रोमोसोम उसको मदर से मिलेंगे, 23 क्रोमोसोम उसको फादर से मिलेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ 6 क्रोमोसोम दिखा रहे हैं बट उसको बाकी रिमेनिंग भी मिलेंगे. एक ये हो गया और बाकी 22 भी साथ ही आ रहे हैं, बस उनको शो नहीं किया गया है क्योंकि बाकी 22 तो सेम ही है मेल और फीमेल के. तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन? पॉसिबिलिटी कैन बी दैट एक्स और एक्स कंबाइन कर जाए, देन यू विल गेट XX. दैट मीन्स XX किसका क्रोमोसोम होता है? फीमेल का. यू विल गेट अ बेबी गर्ल. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि X और X कंबाइन कर जाए. ठीक है, हमने इन दोनों को कंबाइन किया, फिर हम इनको और इनको कंबाइन किया, अगेन यू आर गेटिंग XX मीन्स अ बेबी गर्ल. लेकिन अगर Y और X कंबाइन कर गए देन यू विल गेट XY. दैट मीन्स अ बेबी बॉय. अगेन अगर Y एंड X कंबाइन कर गए देन यू विल बी गेटिंग XY. दैट मीन्स अ बेबी बॉय. So that means 50% chances is of baby girl and 50% chances are of baby boy. And who is going to decide whether it will be a baby girl or a baby boy? Nobody. Nobody can decide. Neither the father can decide nor the mother can decide. It is the destiny which is going to decide that whether it will be because these are microscopic cells and nobody can handle the fusion. It is a natural phenomenon that takes place. So in society sometimes the female is responsible for giving a birth to a girl child. माँ को दोष दिया जाता है कि बेटी पैदा कर दी, हमें तो बेटा चाहिए था. So these type of problems are in society and this is not at all fair that the mother should be responsible for that. If you look at the scientific part, mother doesn't have a Y chromosome at all. A female child तो बनेगा या मेल चाइल्ड पैदा होगा उसके लिए तो मेल मतलब बॉय के लिए तो वाई क्रोमोसोम चाहिए और वाई क्रोमोसोम किसके पास है? मेल के पास. ठीक है, फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं. सो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो Y chromosome is present with male. So male is responsible. Now again we cannot tell that male is responsible क्योंकि ये fusion nobody is controlling this fusion. So it is the God who is going to decide it. So in society we should not blame anybody for giving birth to a girl child or a boy child. Good habits formed at youth makes all the difference. यानी कि टीन एज में जिस तरह की आप आदतें सीखोगे वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगी. तो इसलिए इस एज में आपको अच्छी आदतें, अच्छे स्किल्स सीखने हैं, अच्छा कैरियर बनाना है, अच्छी नॉलेज लेनी है.